Hello students, this is Manoj Upadhyay and I'm going to explain Unit 1, Session 2 of Class 9. So, verbal and non-verbal method of communication. तो नाम से ही पता लग रहा है कि ये क्या चीज़ है. You have learned that we can communicate in different ways. The most important forms being the verbal communication and the non-verbal communication. In this session, we are going to discuss two methods of communication, verbal and non-verbal. So, type of communications. There are different type of methods of communication. It may be verbally, using voice, written, using handwritten, notes or print media like books and magazines, etc. Visually, poster, chart, graph, and non-verbally, you let your body speak. चेहरे की भाव भंगिमाओं से, मुंह से एक्सप्रेशन करके. तो वर्बल कम्युनिकेशन क्या है? Verbal communication is a type of oral communication in which we use sounds and words to express ourselves. बोल के बताते हैं. We give words to our thoughts and feeling and present them in the form of discussion, speech and conversation. Effective verbal communication is defined by these factors: the tone of the speaker, clarity of speech, the speed of speaking, volume, body language and vocabulary, or rather the quality of words that we use in conversation. तो वर्बल कम्युनिकेशन क्या चीज़ है? ओरल कम्युनिकेशन है. मुंह से जो बोल के बता रहे हैं, साउंड से, वर्ड से अपने आप को जब एक्सप्रेस कर रहे हैं, तो ये वर्बल कम्युनिकेशन है. इफेक्टिव वर्बल कम्युनिकेशन के फैक्टर्स क्या क्या है? यानी इफेक्टिव टोन, चिल्ला के नहीं बात कर रहे हैं, प्यार से बात कर रहे हैं, जो बात कह रहे हैं वो समझ में आ रहा है. काफ़ी सारे लोग होते हैं वो क्या बोल रहे हैं समझ में नहीं आता है. द स्पीड ऑफ स्पीकिंग, जो बोला जा रहा है वो इतना तेज बोला जा रहा है कि कुछ क्लियर ही नहीं हुआ, क्या मतलब दिमाग समझ ही नहीं पाया कि बोल क्या रहे हैं. वॉल्यूम, बहुत धीरे बोल रहे हैं या बहुत तेज बोल रहे हैं. बहुत तेज बोल रहे होंगे तो भी ऐसा लगेगा कि सिर में दर्द हो गया, और इतना धीरे बोल रहे हैं कि सुनाई नहीं दे रहा है. बॉडी लैंग्वेज, बोलते समय जो स्पीकर है उसकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है. और कई लोग होते हैं वो इतने डिफ़िकल्ट वर्ड यूज़ करते हैं कि वो क्लियर ही नहीं होता उसका मतलब क्या हुआ. पहले या तो उनकी स्पीच सुनने से पहले डिक्शनरी लेके बैठो, या वो इतने हल्के शब्द यूज़ कर रहे हैं कि सुनने में मज़ा नहीं आ रहा है. जैसे कहते हैं कि अरे क्या चीप सी लैंग्वेज यूज़ कर रहा है, गाली वाली दे के बात कर रहा है. तो मतलब वॉकेबलरी भी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है. ठीक है. द टोन ऑफ द स्पीच एंड वर्ड्स यूज्ड इन इट शुड वर्क वेल टुगेदर. द स्पीकर शुड बी ऑडिबल. मतलब यही हुआ इसका जो मैंने एक्सप्लेन किया. तो कंपोनेंट्स ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन. Components of verbal communication. So verbal communication takes place with at least two or more people. Here the sender speaks and other listens. तो दो लोग तो चाहिए ही चाहिए, तभी तो communication हो पाएगा. In order to have an effective verbal communication, following components must be there: clear speech of sender, यानी जो बोल रहा है उसकी आवाज़ क्लियर हो. Listening skills of receiver, जो रिसीवर है वो सुन सकता हो. अटेंशन हो, रिलायबिलिटी हो, मतलब वो सुन रहा है वही सुन रहा है. काफ़ी सारे लोग होते हैं कि आपने कुछ और कहा, मतलब उनको कुछ और निकाल लिया, तो ये वो अटेंटिव नहीं थे, ध्यान नहीं दे रहे थे वो. तो कॉमन फ्लुएंट लैंग्वेज, जो द लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन शुड बी सच so that both the sender and receiver can understand it. Also the flow of words should not be broken. ऐसा ना हो कि एक बार बोल लिया, ऐसा स्लॉथ होते हैं, एक बार ऐसे कर लिया ऊपर, फिर बहुत देर बाद, तो मतलब आराम से बोल रहे हों, इतना कि उनको समझ में आ जाए. Comprehension, the receiver then comprehend what is being said by assessing the same in the context in which it is said. For example, the sentence says Rohan cut the tree. It gives a wrong impression about Rohan, as tree must be preserved as long as possible. Cutting trees is illegal
in most areas, so Rohan is considered as an offender and not a good citizen. But if the context is like a big tree fell which damaged the bus carrying children and blocked the road too, to save the children, Rohan cut the tree. यानी जो बात कही जा रही है वो कंप्लीटली कही जा रही हो, ऐसा में पोर्शन जैसे न्यूज़ वाले होते हैं ना, मैंने एक न्यूज़ सुना था कि जिसमें एक चीफ मिनिस्टर कह रहे थे कि पानी जो इस राज्य में छोड़ा जाएगा उसमें से बिजली निकाल ली जाएगी। अब मीडिया पे दिन भर न्यूज चलती रही कि देखिए वो कितने अज्ञानी हैं, कितने उनको समझ में नहीं आता वो क्या बोल रहे हैं, कैसे अनपढ़ हैं, जबकि जो पूरी बात थी वो कुछ और ही थी। वो कह रहे थे कि लोग तो ये भी कहना चालू कर देते हैं कि पानी जो छोड़ा जा रहा है उसमें से बिजली निकाल ली गई है, यानी सेंटेंस पूरा नहीं था। तो कंप्लीट सेंटेंस होना चाहिए। ये शो कर रहा है कंपोनेंट्स ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन, यानी क्लियरिटी ऑफ स्पीच, लिसनिंग, लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन एक्सेट्रा। टाइप ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन, the verbal oral form of communication is further classified into 4 categories: intrapersonal communication, interpersonal communication, small group communication, public communication और public speaking। तो क्या है intrapersonal? It includes the silent conversation we have with ourselves, wherein we juggle the role between the sender and the receiver। यानी आपस में बात कर रहे हैं। जैसे कई बार क्या होता है कि हमारे सिर में दर्द हो रहा, अरे यार सिर में दर्द हो गया, यानी हम इंट्रापर्सनल हो रहे हैं। इंटरपर्सनल, इट टेक्स प्लेस बिटवीन 2 इंडिविजुअल्स एंड इज दस अ 1-to-1 कन्वर्सेशन। या अपने दोस्त से बात कर रहे हैं, यार मेरे सिर में दर्द हो रहा है, क्या करूँ, है ना। स्मॉल ग्रुप कम्युनिकेशन, यानी जो आप लंच में करते हैं कम्युनिकेशन, छोटे छोटे ग्रुप बना के जो खाना खा रहे होते हैं और जो आप आपस में बातें कर रहे होते हैं, या इवन एक सब्जेक्ट के 4-5 लोग जगह खड़े होकर मीटिंग कर रहे हैं, तो वो भी एक स्मॉल ग्रुप कम्युनिकेशन है। और पब्लिक स्पीकिंग या पब्लिक कम्युनिकेशन, दिस टाइप ऑफ कम्युनिकेशन टेक्स प्लेस व्हेन वन इंडिविजुअल एड्रेसेस अ लार्ज गैदरिंग ऑफ पीपल। जैसे सुबह सुबह प्रिंसिपल सर असेंबली में आप लोगों को एड्रेस करते हैं, तो ये पब्लिक कम्युनिकेशन हुआ। एडवांटेजेस ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन क्या है? तो वर्बल कम्युनिकेशन ऑफर्स दीज एडवांटेजेस: कन्वेइंग आवर मैसेज इज ईजी एंड क्विक, सब लोगों तक बात पहुंच रही है। द रिस्पॉन्स यू गेट फ्रॉम द ऑडियंस इज क्विक एंड इमीडिएट, रिस्पॉन्स मिल जाता है। इट प्रमोट्स अ सिक्योर एक्सचेंज ऑफ आइडिया। You can keep updating your speech according to the response you get from the audience. It is a cheaper way of communication. It saves money. It appropriately communicated. It can have powerful effects on the listeners. ठीक है। और disadvantage क्या है? The language and cultural differences, the speakers and the listeners may result in miscommunication। कई बार ऐसा होता है कि जो लैंग्वेज या कल्चरल डिफरेंसेस है उसकी वजह से हम कहानी बदल लेते हैं। जैसे काफ़ी से साउथ के लोग हैं, वो अलग तरीके से बात कर रहे हैं, बिहार के लोग अलग तरीके से बात कर रहे हैं, बंगाल के लोग अलग तरीके से बात कर रहे हैं, तो उसका मतलब हम फिर फनी वे में ले जाते हैं। इट हैज़ नो लीगल वैलिडिटी, अब चूँकि बोल के बात कर रहे हैं इसलिए कोई लीगल वैलिडिटी नहीं है। इट इज़ नॉट सूटेबल फॉर लेंदी मैसेजेस, बहुत लंबी भाषण नहीं दे सकता, लंबी चीज़ जो याद रखने वाली हो उसको आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते, उसके लिए नोट ही करना पड़ेगा। इफ़ वी आर कन्फ्यूजिंग एंड कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स इट मे बी डिफ़िकल्ट टू कम्प्रहेंड। और अगर बहुत कॉम्प्लिकेटेड वर्ड यूज़ किए गए हैं तो फिर तो भगवान ही मालिक है। सॉरी, ये पेज तो थोड़ा ब्लर हो गया है, तो मैं एक इमेज खोल लेता हूँ। ओके, तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। Non-verbal communication is a form of communication sorry, which does not use any sounds to convey our message instead of our body language, facial expression, movement, gesture and general behavior, and sends our message. Example of communication includes a smile, a wink or a wave and so forth। यानी इसका मतलब नॉन वर्बल का मतलब क्या हुआ कि आप बोल के नहीं बात कर रहे हैं, बट बॉडी लैंग्वेज, जैसे भीड़ में हैं आप या रोड पे हैं या कार में हैं आप और सामने से पास कर रहे हैं, तो आप हाथ हिलाते हैं, स्माइल करते हैं, कई बार विंक करते हैं, है ना।
तो इसका क्या है, कंपोनेंट्स क्या है? बॉडी लैंग्वेज. तो योर बॉडी हैज़ इट्स ओन लैंग्वेज एंड यू कैनॉट फेक इट. अ कॉन्फिडेंट पोस्चर इज क्लियरली to anyone. So while communicating non-verbally, body language is extremely important and it may successful convey your message और may even ruin it. अगर बॉडी लैंग्वेज सही नहीं है तो या तो ये आपकी बात पहुंचा देगी या बिल्कुल ही डुबा देगी. तो इसलिए बॉडी लैंग्वेज सही होनी चाहिए. फेशियल एक्सप्रेशन. तो फेशियल एक्सप्रेशन एंगर, कंटेम्प्ट, डिस्गस्ट, फियर, हैप्पीनेस, सैडनेस, सरप्राइज, ये सारी चीज़ें फेशियल एक्सप्रेशन शो करता है और ये सामने वाला बंदा इसको पढ़ भी लेता है. इमेजिन यू मिसमैच्ड मैसेज व्हेन अ fearful pensive face describe the life-ending benefits of a new healthcare product. So you should be aware of what you face. जैसे आजकल वो कोरोना का चल रहा है तो आदमी जैसे ही पता लगे बात कर रहे हैं और सामने वाले ने खांस दिया या छींक दिया तो आपके चेहरे के एक्सप्रेशन बदल जाएंगे. ये फेशियल एक्सप्रेशन ही है. आप फिर अपना हाथ ढकने, मुंह ढकने लग जाएंगे एंड सो ऑन. हैंड मूवमेंट, ये जेस्चर है. जेस्चर इज एनी फिजिकल मूवमेंट दैट हेल्प एक्सप्रेस एन आइडिया, ओपिनियन. अब कई बार लोग जैसे बात करते समय हाथ हिलाते हैं और उंगलियों को यूज़ करते हैं. प्रॉक्सिमिटी ऑफ पोजीशन. प्रॉक्सिमिटी इज ऑल अबाउट पर्सन पोजिशनिंग एंड देयर स्पेस इन रिलेशन to other. Various factors impact how closely we sit or stand next to someone. The distance is normally determined by social and cultural norms and the unique patterns of these interfacing. तो पोजीशन जो है ये भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है कि आप कितना दूर से, कितने नज़दीक से खड़े होकर बात कर रहे हैं. हालांकि आजकल तो सोशल डिस्टेंसिंग का टाइम है तो हमें दूर से ही बात करना चाहिए. ठीक है, अब अगला देखते हैं. नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. प्रॉक्सिमिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर. यू शुड नो वेयर यू शुड स्टैंड एंड व्हेन स्टैंडिंग नेक्स्ट टू अ पर्सन. पता होना चाहिए किसके पास खड़ा होना है, किसके पास नहीं खड़ा होना. यू शुड कीप इन माइंड दैट यू आर प्रॉक्सिमिटी जोन, that there are proximity zone around each person. तो सबके पास खड़े होकर बात नहीं कर सकते या सारी बातें नहीं कर सकते तो जोन पता होना चाहिए. इंटीमेट जोन. दिस इज अबाउट 15 to 45 सेंटीमीटर, 6 to 18 इंच. ये इंटीमेट जोन है, यानी बहुत सारा करीबी दोस्त हो आपका तो उसे आप बहुत करीब होकर बात करते हैं. बहुत करीब हो तो फ्रेंड जोन जो होता है वो थोड़ा दूर होता है कि ठीक है दोस्त है, दोस्त की तरह ही बात कर. सोशल जोन 1.2 to 3.5 मीटर्स और ऑडियंस जोन 12 फीट तक हो सकता है कि इतनी दूर तक खड़े होकर बात करना है. आई कॉन्टैक्ट. द आई कॉन्टैक्ट इज अ प्राइमरी टूल ऑफ एस्टैब्लिशिंग नॉन वर्बल कनेक्शन. आंखें मिल ही नहीं रही हैं, क्लास में टीचर पढ़ा रहे हैं और आप सिर हिला रहे हैं या क्वेश्चन करें तो जब तक आई कॉन्टैक्ट नहीं होगा तब तक पॉसिबल नहीं है कि आप बात कर पाएँ. एप्रोप्रिएट वॉइस टोन, यानी आप जो बात कर रहे हैं उसकी टोन कैसी है, तेज, धीरे, गुस्से वाली. कई बार ऐसा होता है कि सीरियस बात हम हंस के बोल रहे हैं तो उसका कोई मतलब ही नहीं हुआ. जो लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं वो सही लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं कि नहीं यूज़ कर रहे हैं. ओके. प्रोफेसर एल्बर्ट मेहराबियन of the University of California in Los Angeles in 1970 proved that in personal communication, non-verbal communication convey 93%, while verbal communication conveys only 7%. तो ये तो बहुत बड़ा फैक्टर हो गया कि इतना बॉडी लैंग्वेज रोल प्ले कर रहा है, इतना वॉइस टोन और इतना वर्बल. ठीक है. एडवांटेज ऑफ नॉन वर्बल. तो नॉन वर्बल क्यूज एंड ईजी टू गिव, आसान है किसी को बता पाना. टाइम इज यूजली नॉट वेस्टेड, समय बर्बाद नहीं होता है.
और इलिटरेट लोग भी इसमें बात कर सकते हैं। डिसएडवांटेज क्या है? लॉन्ग एंड डिटेल मैसेज कैन नॉट बी कम्युनिकेटेड, बड़ी बात नहीं कही जा सकती है। इन दिस टाइप ऑफ कम्युनिकेशन speakers only uses gesture, facial expression, eye contact and touch. It might become difficult for some people to understand. कई बार अर्थ का अनर्थ भी निकल जाता है। ओके